तालीम जो है ना ये सबके लिए ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी तरफ से, हनवार साहब की तरफ से, जजीर साहब की तरफ से, हमारे आने वाले हैं। कश्ती वेरां से नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपनी कश्ती वेरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखे से साकी। They can look after their children properly. They can teach their children good manners, discipline and lessons. The mother is the first teacher of everyone. Furthermore, they can be engineers, doctors, teachers and so on. We must provide good education for our daughters and sisters. If we provide good education for our daughters and sisters, they can do not less than our sons. I want to say something before I leave. जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी हो, जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी हो, तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं रहनुमा नहीं। Benefit in his her life. Education is the only key to success and personal and professional life. Education has various types of knowledge and skills. It is a continuous process which starts when we take a birth and ends when our life ends. We should make our habits of learning always. आलिम के समंदर में गोते लगाई इल्म के आलिम को ऊंचा करती है और फिर हकीर सी सुई लेकर भारी बरहम जहाजों पर अपने नाम के ठप्पे लगवाती है और ये ऐलान करती है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे कौन दबाएगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फक्रे आलम अमन, मुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरु हो जा, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरु हो जा। क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तो फिर तालीम की बदौलत तारीख गवाह है कि आप परस्तश करने वालों ने अपने आप काबू में लिया और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला इंसानी तरक्की हुई है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, बोला कि इंसानी तरक्की। यही तरक्की चीख चीख कर कह रही है। तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तालीम के मैदान के सिपाही जब ईसाक न्यूटन ग्राहम बेल ये बनते हैं तो दूसरों को जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जीना बनते हैं, तलाश कर मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश। Four new slogans for encouraging the parents to admit their children of up to 9 years of age in some 52,000 government schools across the province. The slogan include आओ स्कूल चले, come let's go to school, तालीम से अपना नाम पढ़ाकर, make name with education, आओ पढ़ो खेलो आगे बढ़ो, come study play move ahead, and आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा। Education is must for progress. Opening doors through literacy, do not be mean behind the screen. Opening door through literacy, do not be mean behind the screen. Education is better, but the fruit is sweet. Read, lead, succeed. Education is power. Education is power. Today reader, tomorrow a leader. Do not be mean behind the screen. Knowledge is power. Niceness is priceless. Politeness is priceless. Be the change you wish to see in the world. No child should be left behind. In order to succeed, you must read. Education is a better safeguard of liberty than a standing army. Every child hears to learn. It is only the ignorant who despise education. Books food for the brain. Books food for the brain. What goes around come around. Help don't hurt. Sail on a seas of book. That to exceed, you must read. Education your door to the future. A happy school, a brighter future. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Be safe, be kind, be smart, be a listener, be a reader, be a problem solver. Proper education, proper future. Teacher begins.
Once the parents are made to accept the government school can do at par with private schools or better, the teacher need to improve this commitment practically. Through various unleashed initiatives, school education department is on toes for the law. For living life happily, moreover, it empowers and motivates our mind to conceive good thought and idea and grow our knowledge day by day. Moreover, education helps us in acquiring new skills and technique, thus it become effortless to do our daily life activities in the best possible ways with maximum output and excellence. Education is necessary to raise a person's standard of living, as it gives us all the necessary good and awareness about how we can increase our earning with the use of our brains and knowledge. Importance of education in the life of a student. Education is one of the most important and mandatory elements in the life of a student. It helps the student to do analysis while making important decisions in life. Education is essential for a student because after being educated enough, a student will be able to select a good career option for them, so that they can succeed in life with the help of education. ये है कि कोई भी बच्चा जो है वो घर में ना रहे, स्कूल में दाखिल हो जाए। तो चूँकि पेरेंट्स जो है वो सुनने के लिए कम आते हैं ऐसे प्रोग्रामों में, लिहाजा हमारा जो एक मीडियम है, एक जरिया है अवेयरनेस का, वो बच्चे ही हैं। लिहाजा आप लोगों ने घर में जाके ये इक्कू साहब की तरफ से, मास्टर साहब की तरफ से, सीओ साहब की तरफ से ये पैगाम देना है कि कोई भी बच्चा, आप तो स्कूल आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस का कोई बच्चा ऐसा हो कि जो स्कूल में दाखिल ना हुआ हो। जो भी 5 साल का बच्चा हो गया है उसको स्कूल में एनरोल करवाना है ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके। तो जैसा कि आपने सुना, आप वक्तन फक्तन सुनते रहते हैं कि टीचर्स का बड़ा रोल है। ये पीछे बच्चे कुछ आपस में कपड़े लगा रहे हैं, शायद इनको जरा सीधे कर। बच्चों जरा कंसंट्रेशन चाहिए आपकी। आप पेरेंट्स के बारे में सुनते ही रहते हैं, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, और गवर्नमेंट के लिए तो माशाल्लाह सारे लोग बोलते ही रहते हैं सरकार ने ये किया, वो किया या ना किया, जो भी किया। लेकिन आप लोगों पे भी बच्चों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आप लोग समाज की करीम है ना। प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, आपके साथ घर में भी रौनक है, आपके साथ स्कूल में भी रौनक है, आपके साथ गरीब महलों की भी रौनक है। तो लिहाजा बच्चे भी अगर थोड़ा सा जिम्मेदारी अपनी निभाएं, जो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं वो बचपन से ही अच्छे थे। जो बच्चा ही अच्छा होता है वही बड़ा बन के अच्छा एक इंसान बनता है, परफेक्ट। आप इब्राहिम लिंकन को देखो, आप APJ अब्दुल कलाम को देखो, आप गांधी जी को देखो, आप कार्ल मार्क्स को, किसी को भी आप देखेंगे जो भी दुनिया का बहुत अजीम आदमी बना है, लीडर, मजहबी शख्सियत तो अलग है, लेकिन जो लीडर बने, पॉलिटिशियंस बने, साइंटिस्ट बने, हिस्टोरियंस बने, स्कॉलर्स बने, फिलासफर्स बने, वो बच्चे ही अच्छे थे। बड़ा हो गया कोई अच्छा नहीं हो जाता है कि हाँ जी मैं बड़ा हो गया, मैंने ये एग्जाम पास कर लिया, मैं अच्छा हो गया हूँ। जो बच्चा अच्छा होता है वही बड़ा बन के अच्छा इंसान बनता है। तो लिहाजा आप ने बातें भी, अपनी लाइफ भी अच्छी करानी है, बातें भी अच्छी करनी है, और बाकी बच्चों के लिए भी अच्छा सोचना है। क्योंकि बिहार में आपके जैसे बच्चे थे ना, बिहार में मैं सोच रहा था कि वो रेलवे स्टेशन पे स्कूल में जाने से पहले और घर वापसी के लिए जब स्कूल से वापस आते हैं तो रेलवे स्टेशन पे जो ये हमारे होते हैं बिहार वाले बागी मजदूर, इनके बच्चों को जमा करके पढ़ाते हैं। जो हाई स्कूल का स्टूडेंट है, हाई सेकेंडरी का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, कॉलेज के लिए स्कूल के लिए घर से जरा पहले जाता है, फिर रेलवे स्टेशन जमा करके बच्चों को पढ़ाता है या पढ़ाती है, और फिर वापस 2 बजे 4 बजे आके फिर उनका सबक सुनते हैं, बताओ कितना याद किया। तो सबसे एक खूबसूरत, एक सबसे खूबसूरत सीन दुनिया का ये है कि जब बड़ा बच्चा जो है छोटे बच्चे को पढ़ाता है, इतना टेंडर सीन दुनिया में दूसरा कोई नहीं लगता है कि जब एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे को पढ़ाता है। बड़ी बहन जो है छोटे भाई को या छोटी बहन को, या बड़ा भाई जो है छोटे बहन भाई को पढ़ाता है, उसका सुबह मुंह धुलवाता है, उसकी यूनिफॉर्म ठीक करता है, उसको ब्रश करवाता है, स्कूल में उसको बड़े केयर से स्कूल में साथ लाता है, रोड क्रॉस कराता है, फिर बाहिफाजत घर ले जाता है और वहाँ जाके उसको होमवर्क भी करवाता है।
तो ये आपकी भी एक कंट्रीब्यूशन है आपके बहन भाइयों को पढ़ाने में, उनको स्कूल तक पहुंचाने में, उनकी पढ़ाई में और उनको अच्छा बनाने में। ऐसा जो बचपन से ही अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा एजुकेशन के लिए। अच्छा, दूसरा इस पढ़ाने का बहुत फायदा है। जो बच्चा या बच्ची 10th वाला 8th वाले को पढ़ाएगा उसका अपना नॉलेज भी बढ़ेगा। और वैसे भी तो कोविड ने आप लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया है, स्कूल नहीं आ पाते हैं, टीचर से आपका राब्ता नहीं होता है। आप इंटरनेट भी वही लोग यूज़ करते हैं जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है या जहाँ सिग्नल है। मैं एक दिन गुगोनी में देख रहा था, एक जगह मैंने चाय पी, फिर ऊपर वाले छत में नमाज पढ़ने के लिए गया तो एक बच्चा बैठ के वहाँ मोबाइल पे अकेला ही और स्टडी कर रहा था। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो मोबाइल पे गलत चीज़ें देखते हैं, या दोस्तों को फ़ोन करेंगे, गपशप लगाएंगे, या कोई यूट्यूब खोल के वीडियो देखेंगे। लेकिन जब एक बच्चा अकेले में मोबाइल खोल के स्टडी कर रहा हो तो वो पेरेंट्स कितना खुशकिस्मत है, उनका दिल कितना खुश हो जाएगा। अगर मैं खुश हो गया तो नेचुरली उसके माँ बाप भी तो खुश होंगे। तो लिहाजा बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सही बात बोली लड़कियों ने कि इफ़ यू टीच और इफ़ यू गिव एजुकेशन टू अ मेल चाइल्ड यू एजुकेट अ सिंगल पर्सन। कॉन्टेक्स्ट सेम है। इफ़ यू एजुकेट अ गर्ल चाइल्ड यू एजुकेट द सोसाइटी। ठीक है, बहुत अच्छा बोला। मैं आपको जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अ स्पीच, तो मैं आपको इससे एक स्टेप पीछे ले जाऊंगा और एक स्टेप आगे ले जाऊंगा। मेरे पास कुछ डेटा है इस टाइम, जिससे सबसे पहले मैं आपको लिटरेसी रेट समझाऊंगा कि लिटरेसी रेट क्या है इंडिया का। लिटरेसी रेट इस टाइम आप देखेंगे तो 2021 में जो नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से 77.7% ऑफ द पीपल आर लिटरेट इन इंडिया। आप समझते हैं 77.7% का क्या मतलब है कि जो अगर हमारी पॉपुलेशन 100 है तो उस 100 में से 77.7% लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, विच मीन अप्रॉक्सीमेटली 23% लोग अभी भी जिनके पास एजुकेशन नहीं पहुंचती। लेकिन इस चीज़ को 77.7% को मैं अगर ब्रेक डाउन में देखूं, इसमें मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितनी हैं। ऑल्दो ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन मेल्स का जो लिटरेसी रेट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 84%, एंड जो फीमेल की बात आती है दैट इज 71%। सो विच मीन कि इसमें से भी जो मेल्स है वो ज़्यादा पढ़ते हैं, फीमेल्स थोड़ा कम पढ़ते हैं। आप 2011 का डेटा उठा के देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 73% लिटरेसी रेट था इंडिया का, जो पिछले 10 सालों में ओनली एंड ओनली 4% इंक्रीज हुआ है। जो हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि समथिंग इज रॉन्ग इन द सोसाइटी। वो क्या है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हमें वो सोचने की ज़रूरत है। उन रीजंस पे मैं बात कराता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि लिटरेसी रेट होता क्या है। अगर एक जनरल डेफिनेशन मुझे बतानी हो कि व्हाट इज लिटरेसी रेट, तो मैं बोलूँगा एनीबडी हु इज अबव द एज ऑफ 5-6 years हु कैन रीड एंड राइट इज लिटरेट। तो आप बोलेंगे कि तहसीलदार साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो बच्चा जो पढ़ सकता है और जो लिख सकता है वो लिटरेट है। ठीक है, आप सबको लगता है ऐसा होना चाहिए जो पढ़ और लिख सकता है। लेकिन इसको क्रूड लिटरेसी रेट बोलते हैं। क्रूड जैसे जमीन से तेल निकलता है ना, कच्चा तेल, वो पेट्रोल नहीं, वो डीजल नहीं। कच्चा तेल अगर गाड़ी में डालोगे ना, किसी भी पेट्रोल गाड़ी में, डीजल गाड़ी में, तो नहीं चलेगी, कच्चा तेल है, दैट इज क्रूड लिटरेसी रेट। सो एक्चुअल टर्म्स में अगर मुझे लिटरेसी रेट देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा anybody who is above the year of 5, 6, 7 years who can read, who can write with ability to understand। आप मेरी बात समझ रहे हैं? पढ़ना और लिखना ही काफी नहीं है, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि फर्स्ट को में आप अपना स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाइए, तो बहुत सारे बच्चे पहले 100 थे 150 हो जाएंगे स्कूल में। लेकिन उसका आउटपुट क्या है स्कूल से? क्या आप लोग आ रहे हैं और एक एक क्लास पास कर रहे हैं, और इन दी एंड अगर मैं आपसे एक छोटा सा डेफिनेशन पूछूं और आपको नहीं पता, तो दैट इज नॉट लिटरेसी, क्योंकि वो पढ़ाई जो आगे काम ना आए दैट इज नॉट लिटरेसी। तो लिटरेसी को रीडिफाइन किया जाता है, आप मेरे साथ बोलेंगे क्या? वो आदमी, वो बच्चा जो पढ़ सकता है, जो लिख सकता है, और उसको इतनी अक्ल है कि वो समझे कि क्या लिखा है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। लेकिन इसके साथ साथ एक उल्टा शेर भी अर्ज करूंगा, दिल सू से खाली है, निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या,
कि तू बेबाक नहीं है। तहसीलदार साहब ने डेटा लेकर बड़ी अच्छी बात की है। यहाँ पे तहसीलदार साहब की बात को ही आगे मैं ले चलूंगा थोड़ा सा। अगर हम ये डेटा, जैसे तहसीलदार साहब ने कहा, वैसे मैं भी कह रहा हूँ आपसे, ये डेटा गूगल पर अवेलेबल है। अगर हम 2011 की सेंसस को देखें, हमारा डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण जो है, यहाँ की लिटरेसी रेट जो है 54.27% है। यानी यूं समझ लीजिए आधी आबादी हमारी अनपढ़ है। इसके बाद अगर हम मेल लिटरेसी रेट देखेंगे, यानी मर्द, कितने मर्द पढ़े लिखे हैं, 100 में से सिर्फ 68 मर्द पढ़े लिखे हैं। अगर हम औरतों की बात करें तो 100 में से सिर्फ 38 औरतें जो है वो पढ़ी लिखी हैं। एक डेटा ये, जब इस डेटा को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो दिल में एक इस किस्म की खिलिश पैदा होती है, काश हम कब आगे बढ़े। परसों ही एक रिपोर्ट आई है हमारी डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण की, हमारे JKUT में सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, और सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन है। 35% लोग जो है अभी बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। वजह क्या है? पहली वजह है कि हम तालीम याफ्ता नहीं। तालीम एक ऐसा चश्मा है, जब वो खुलता है तो हर जगह बाहर जैसा प्रोग्राम है। हम सबसे पहले आप सभी लोगों का खैर मकदम करते हुए, खसूसन हमारे आज के जो मेहमान खसूसी हैं, SDM साहब जो अभी कुछ देर पहले चले गए हैं, उसके बाद BDC साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, इनका फिर से एक बार तहे दिल से वेलकम करते हैं। जिस तरह से इतने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब करवाया, और उसके बाद उन उस्ताद-ए ग्राम का जो इन क्लस्टर्स में पढ़ते हैं और दूर दूर से आए हुए हैं, सुबह से जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इस प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाने के लिए एक बार दिल से मैं खसूसी तौर पे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं पेरेंट्स से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि एनरोलमेंट ड्राइव जो है ये एक मजबूरी की हालत में लाना पड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो बंद होने की कगार पे आ चुके हैं। इसलिए मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, मौदबाना अपील रहेगी कि जितना हो सकता है अपने स्कूलों में इनरोलमेंट, जो बच्चों की जो एडमिशन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह किया जाए, उसके बारे में अभी तक हमारे सर से बात भी हो रही थी। तो इसके बाद शायद उनका अलग से प्रोग्राम भी है मीटिंग का। तो उनके मुताबिक कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ बंद होने के कगार पे पहुँच गए हों। बहरहाल चीज़ें एक ध्यान में रखने वाली बात है कि आज स्कूलों, जो गाँव में स्कूल है, अगर हमारे वो स्कूल भी बंद हो जाएंगे तो हमारे लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा आने वाले जनरेशन के लिए। इसलिए जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में एडमिशन करवाने की कोशिश कीजिए, उसमें अपना योगदान दें। और उसके बाद ये है, मैं सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपने कुछ ख्यालात रख सकूं। बहरहाल वक्त काफ़ी हुआ है, मैं मज़ीद बच्चों को जहमत नहीं देना चाहता हूं। एक तवील अरसे से प्रोग्राम चल रहा है, मुझे भी, मैं इस स्कूल का खुद विद्यार्थी रह चुका हूं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आज मुझे इसी स्कूल में एक प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला। बहरहाल मुझे लग रहा है कि आज बच्चों से ज़्यादा अच्छी स्पीच की और अपना नंबर ले लिया। मैं अपनी दिल की हमें गहराई से
बच्चों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। जिस कदर इनने निडर अंदाज में अपनी स्पीच रखी, अपनी बातें रखी, मुझे इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट महसूस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बच्चों पे ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे समाज में अनपढ़ता को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो तालीम रसूआ की है, और बच्चा इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो मेरे सामने बच्चियां हर के घर में अपने छोटे भाई वगैरह होंगे, तो कोशिश हमने अपने घर से शुरू करनी है। कश्मीरी में मिसाल है, सुना तो हमने बहुत चीज़ें यहाँ, लेकिन कश्मीरी में एक मिसाल है कि ब्राड़ बनाओ हचो म्याऊ कुछ कह रहे। शायद सारे पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। खर्द को गुलामी से आजाद कर, खर्द को गुलामी से आजाद कर, जवानों को तीरों का उस्ताद कर, जवानों को तीरों का उस्ताद कर। आखिर में यहाँ के लोगों के लिए एक मेरे उस्ताद मोहतरम जो मेरे कॉलेज के उस्ताद थे, राजा शौकत, उनका शेर आपके सामने रखना चाहूंगा, जो मुझे उस वक्त जहन में आया है, शायद मरते दम तक नहीं भूलेगा। कोंपले फूटाई शाख पर कहना उसे, कोंपले फूटाई शाख पर कहना उसे, वो न बदला न बदलेगा मगर कहना उसे। कोंपले फूटाई शाख पर कहना उसे, वो न बदला न बदलेगा मगर कहना उसे। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि इशारों में कहना जो है वो दुरुस्त रहता है, क्योंकि हम लोगों को आगे आना होगा, आप लोगों को भी आगे आना होगा। मिलजुल के हम इस इदारों को, इस निजाम को आगे चलाएंगे, तभी जाके जो है हम लोग कुछ कर सकेंगे, तभी जब जाके जो है इस रामसू का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है। क्योंकि हम ये एक मसरत का मुकाम है हमारे लिए, एक अचीवमेंट है आज की, जो हमारे सामने ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे सामने हैं, और हमारे अंदर इतना जज्बा है, इतना स्पिरिट है। मैं ये कहता हूं कि जितनी बातें मैंने सुनी है, अगर उनके ऊपर मैं बात करूंगा, शायद मुझे लगता है मैं अपनी ये गारंटी देता हूं, अपने वसूख से कहता हूं, मैं ऊपर वाले के भरोसे से कहता हूं, 1 महीने भी बात करूंगा वो भी कम होगी। क्योंकि वो बातें अगर हम एक जो तहसीलदार साहब की बात है गोल के ऊपर बात करेंगे, तो मुझे लगता है एक महीना लगेगा गोल के ऊपर बात करने में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको मैं क्लास में समझाऊं, अगर आपको मैं कहीं पर भी समझाऊं, लेकिन 1 महीना लग सकता है उसके ऊपर बात करने में। और रहा सवाल, अगर हम पूरी एजुकेशन की बात करेंगे, पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, शायद ये आज का प्रोग्राम जो है ये मुझे 10% प्रोग्राम लगता है, क्योंकि हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हमें और आगे आने की जरूरत है, ताकि जो अवेयरनेस है पूरे लोगों में, एक एनरोलमेंट ड्राइव का चला जाए, और जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो ना रहे घर में, और जो वालिदैन हजरात है वो अपने बच्चों को जो है तालीम की तरफ रागिब करे, हर एक बच्चे को बाहर लाए। क्योंकि तालीम जो है, क्योंकि एसडीएम ये तहसीलदार साहब ने कहा कि तालीम का मकसद ये नहीं है कि नौकरी, वो मुकद्दर है, वो अल्लाह के हाथ में है, किसको देता है किसको लेता है, लेकिन तालीम जो है ये एक आपकी पहचान है। इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, जिस आंख से आप दुनिया के अल्लाह ताला के सारे नजारे देखते हैं, और उनकी पहचान भी आप इस तालीम से करें। घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे, पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।